Hello everyone, I am Dr. Lalit Kumar Gupta, working in Krishna Engineering College, Ghaziabad. Now discuss with our lecture video, relativity. Now today we are going to discuss the next topic related to relativistic addition velocity, or sometimes it is called velocity of addition theorem. Actually, the relativistic addition theorem is quite different than the addition of classical mechanics. So here this addition of velocity is achieved by the use of Laurent transformation equation. We already derived Laurent transformation equation and derived the x dash, y dash, z dash, t dash. So with the help of Laurent transformation equation, we can solve this addition of velocity. Now, as usual, we have two frame of reference, S and S dash. Usually, S is at the stationary state, S dash is moving with v velocity in positive x direction. Suppose in frame S, a person move from point A to B. That particular distance is dx with dt times. So velocity will be dx upon dt. The same distance covered by the person who is moving with v velocity positive x direction, the distance is dx dash and the time is dt dash. So the velocity is u dash is equal to dx upon dt dash. So we have the two velocity, u is equal to dx upon dt, which is calculated at the stationary state, and u dash is equal to dx dash upon dt dash, calculated in frame S dash, which are moving with v velocity, which is to be apparent velocity to be called. Okay, so now you can calculate this particular thing with the help of Laurent transformation or inverse Laurent transformation. Now we are going to calculate on behalf of Laurent transformation equation. We already know that the x value and it using the according to Laurent transformation equation. Okay, using the Laurent transformation equation, we already know that x dash is equal to x minus vt under root 1 minus v square upon c square. Okay, x dash. Now substitute the value t. Also we know that the value t dash. So t dash is equal to t minus xv t minus xv upon c square under root 1 minus v square upon c square. So differentiate this value in form of dx and dt to x dash and t dash. These are the two transformation equation, and these two transformation equation is write down in form of dx and dt dash. So just write down dx dash is equal to dx minus v dt. V is a uniform velocity and 1 minus v square upon c is a constant, so there is no change. Dt dash is equal to dt minus dx v upon c square under root 1 minus v square upon c square. Okay, so substitute this value in equation number second. तो u dash आप निकाल सकते हैं, कितना होगा dx dash. तो dx dash upon dt dash निकालना है हमको, dx dash upon dt dash. तो dx की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ये दी हुई है dx minus v dt upon under root 1 minus v square upon c square. Okay, upon dt. तो अपॉन dt करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर dt minus dx v upon c square. Okay,
So value will be u dash. U dash is equal to dx upon dt की वैल्यू कितनी है u dash. U dash is equal to cancel out value dx minus v dt upon dt minus dx v upon c square. So the whole equation of right hand side divided by dt. dt से आप डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा dx अपॉन dt माइनस v dt अपॉन dt अपॉन dt माइनस dx अपॉन dt v अपॉन c स्क्वायर. So dx अपॉन dt क्या है? We already know the u. So value will be u is equal to u माइनस dt से dt कैंसिल हो गया, ये हो गया v d 1 हो गया dx upon dt u v upon c square. So this is the addition of velocity formula. You can change, यदि इसको इनवर्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो इनवर्स के फॉर्म में लिख लीजिए आप. u डैश का हो गया u का हो गया u डैश माइनस का हो जाएगा प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर. तो ये इनवर्स एडिशन वेलोसिटी हो गया, ये एडिशन वेलोसिटी हो गया. अब नाउ द क्वेश्चन इज आल्सो आस्किंग प्रूव द कंसिस्टेंसी ऑफ आइंस्टीन सेकंड लॉ ऑफ ऑसिलेट को फॉलो करता है नहीं. तो आप इससे भी बोल सकते हैं कि ये एडिशन ऑफ वेलोसिटी जो है आइंस्टीन के सेकंड पोस्टुलेट को फॉलो करता है. तो इफ u डैश इज इक्वल टू c पुट कर दें इसमें हम इस इक्वेशन में, यहाँ वाली इक्वेशन में, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? u इज इक्वल टू u डैश इज इक्वल टू c v अपॉन 1 प्लस u डैश की वैल्यू c हो गई, ये v हो गया अपॉन c स्क्वायर. ओके, सो c प्लस v अपॉन c से c कैंसिल हो गया, v अपॉन c. इसको आप सॉल्व कर लीजिए, c प्लस v अपॉन c प्लस v अपॉन c. तो u की वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा c. सो दिस इक्वेशन प्रूव दैट the velocity of light is consistent in all universal frame of reference and follow the Einstein second postulate. Okay, तो आइंस्टीन के दो पोस्टुलेट थे. The law of physics are same in all universal frame of reference and the velocity of light is universal constant. तो ये हम इसको प्रूव कर दिए. इस तरीके से ये एक 3 नंबर की कैटेगरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मास एनर्जी रिलेशनशिप एंड मासलेस पार्टिकल. ओके, थैंक यू सो मच. Hello everyone, I am Dr. Lalit Kumar Gupta, working in Krishna Engineering College, Applied Science Department. Once again, I welcome you in my video series Relativity. Today we are going to discuss our last topic is variation of mass with velocity. Okay, in short, m is equal to m naught under root 1 minus v square upon c square. So this one is our last topic. Here we discussed the variation of mass, the main concept, and we have seen that length and time are not absolute quantity but depend upon the frame of reference from which they are observed. Actually, the relativistic idea of space and time conclude that the mass of body is not an invariable property under the all circumstances. In fact, mass is a function of time, velocity of a body. It increases the velocity. This is the concept. This is the main concept. It increases the velocity, which is directly concerned with our m is equal to m naught under root 1 minus v square upon c square. So this is our objective.
So how to solve this problem? Variation of mass with velocity, यानी वेलोसिटी जैसे से इंक्रीज करेगी मास भी इंक्रीज करेगा, ये कॉन्सेप्ट हमको प्रूव करना है. तो वी हैव अ सिंपल solution. We have two identical balls, similar ball, which is perfectly elastic. Their shape is same, their weight is same, and identical shape है दोनों का. Okay. As usual, we have before collision, we have two frame of reference, S dash and S. Usually S is at stationary state and S dash is moving with v velocity in positive x direction in respect to S. Before collision, particle had at rest in frame S. जब दोनों कोलाइड नहीं कर रहे हैं उससे पहले ये दोनों फ्रेम S पे हैं. एंड पार्टिकल B in frame S dash. When t is equal to t dash is equal to 0, यानी दोनों इवेंट यदि स्टार्ट नहीं हुआ हो तो दोनों पार्टिकल अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं एट द सेम इंस्टेंट. अब what is the condition? The condition is, suppose A was thrown in a positive y direction. यदि इस पर्टिकुलर बॉल को हम थ्रो करते हैं थ्रोन इन ए पॉजिटिव y डायरेक्शन at speed va. Va is the speed of the ball. Okay. While b thrown in negative y direction at speed vv dash. This is the vv dash. Here one condition is clear, va is equal to vb dash, यानी कि दोनों की वेलोसिटी सेम है. जिस बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं और जो बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है वो दोनों ही बॉल की वेलोसिटी सेम है. अब दोनों बॉल जब एक दूसरे की तरफ डायरेक्शन में आएंगे, व्हेन A एंड B कोलाइड, व्हाट हैपेंड? A रिबाउंड इन माइनस y डायरेक्शन एट स्पीड va. ये इसको रिबाउंड करेगा और ये इसको रिबाउंड करेगा, राइट? तो व्हेन A and B कोलाइड, A रिबाउंड इन माइनस y डायरेक्शन एट स्पीड va, while the ball B rebound in positive y direction and at speed vb dash. ठीक है, ये एक दूसरे को va और vb dash अपोजिट डायरेक्शन पे करेंगे. Therefore जाने और आने में कितना लगेगा टाइम? Therefore the round trip for A as measured to frame S. ये बॉल ऊपर ऐसे गया, ऊपर वाले से टकरा के नीचे आया, तो ऊपर जाने और टकरा के नीचे आने में कितना टाइम लगा? दैट इज द प्रॉपर टाइम मेजर्ड बाय द फ्रेम एस. याद रखना दिस कंडीशन, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं व्हेन बोथ आर एट द स्टेशनरी स्टेट. ओके, सो टी नॉट इज, और वन मोर थिंग, द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल बॉल इज y. दिस इज द y इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल. So distance time is equal to distance upon velocity. ये हो गया velocity va, equation number first, as measured by the frame S. Similarly, the same event observed in frame S, the time will be also t naught, distance will be same but velocity will be changed, vb dash. Okay, this is equation number second. So this is the first condition. अब now suppose ये इवेंट हो रहा है, ऊपर से बॉल आ रही है, नीचे से बॉल जा रही है, दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं. इफ लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व इन द फ्रेम S, यदि लीनियर मोमेंटम फ्रेम S में कंजर्व हो रहा है तो इट मस्ट बी ट्रू. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको अप्लाई करना पड़ेगा. लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है आपको अप्लाई करना है इसमें, तो दोनों के लिए करना है। तो कितना हो जाएगा ये, एम ए वी ए इज इक्वल टू एम बी वी बी। दिस इज द सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लिसन, क्लियर है? अब भी पहली कंडीशन यहां तक, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन विद बोथ आर एट द स्टेशनरी स्टेट। इफ वी अप्लाई, सपोज as this is moving with velocity v, what happened? तो अब क्या होगा कि दोनों टकरा रहे हैं, तो इन s the speed vb is given by। अब यदि इसी फ्रेम से इस फ्रेम पे खड़े होकर मैं यहाँ की चीज देखूं, ये बॉल किस तरह से टकरा रहा है, ये वाला बॉल, अभी तो हमको पता था कि ये बॉल की स्पीड v डैश है, बट when the s dash is moving with v velocity in positive x direction, and then observe the same event by the observer o in frame s, this is the observer o dash, तो उसको किस तरीके से वो नोट करेगा, इन फ्रेम s the speed vb, इन फ्रेम s, इन फ्रेम s में इन s the speed vb is given। किस तरह से आप उसको नोटेट करेंगे, तो हमारा जो वो था टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम विल बी इंक्रीजेज, टाइम विल बी डायलेटेड। हमको ऐसा लगेगा दोनों के बीच में टकराने का समय चेंज हो गया है, तो vb इज इक्वल टू y अपॉन t हो गया। यही सेम चीज, अभी तक ये दोनों को टकराने के बीच में हम प्रॉपर टाइम दे रहे थे टी नॉट, क्योंकि बोथ आर एट द स्टेशनरी स्टेट। इफ हमने कंडीशन लगा दी, इफ लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, तो इट मस्ट बी फॉलो द रूल एम ए बी इज इक्वल टू एम बी वी बी। तो इन फ्रेम एज द स्पीड वी बी इज गिवन बाय वी बी इज इक्वल टू वाई अपॉन टी। और इन इसी चीज को हम देखें इन एस डैश जो करेगा ट्रिप, जो करेगा बॉल बी, as in s dash ball b trip required the time in s dash particle b, जो पार्टिकल b है ये वाला b, वो क्या करते हैं ट्रिप के आने जाने में जो कर रहा राउंड ट्रिप रिक्वायर्ड टाइम, उसको कितना टाइम लगेगा, तो हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा टाइम डायलेशन का। तो टाइम डायलेशन का फार्मूला t इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हमको अप्लाई करना है, ये थर्ड इक्वेशन, ये फिफ्थ इक्वेशन। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो दिस वन इज एम ए इज इक्वल टू वी ए, तो वी ए इज इक्वल टू क्या है हमारा y अपॉन टी नॉट, यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि वी ए इज इक्वल टू वी बी, कोई सा भी इक्वेशन हम ले सकते हैं, क्योंकि एट स्टेशनरी स्टेट पे दोनों की वेलोसिटी सेम थी। यहां से वी ए की निकालेंगे तो y अपॉन टी नॉट लिख सकते हैं हम, टी हो जाएगा आपका y अपॉन टी नॉट एम बी इंटू वी बी। तो वी बी की वैल्यू आपके पास यहाँ दी हुई है, वी बी की वैल्यू वी बी इज इक्वल टू वाई अपॉन टी, और टी इज इक्वल टू ये क्या है आपका टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी वाई अपॉन टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो वैल्यू विल बी कैंसिल आउट हो गया ये, तो एम ए इज इक्वल टू एम बी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो हम इसको एम ए को मानेंगे एम नॉट, एम बी इज इक्वल टू एम, सो इक्वेशन इज इक्वल टू एम नॉट इज इक्वल टू एम अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो इक्वेशन बिल्कुल एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।
So this is the shortcut method of derivation of variation of with velocity. So once again I repeat, we have two identical ball, both are identical, okay, and both are perfectly elastic. दोनों ही एक दूसरे से y डिस्टेंस पे हैं. We have two frame of reference and two observer, O and O dash, right? At t is equal to t dash is equal to 0 कंडीशन पे, जब बॉल A को, when ball A was thrown in positive y direction at speed va, इसको हमने ऊपर की तरफ फेंका पॉजिटिव की तरफ, and while the ball be thrown in negative y direction, what happened? They are collide to each other. When A and B are collide and rebound in opposite direction, तो दोनों की स्पीड अभी सेम थी, तो हमने लिख दिया va is equal to vb dash, right? So therefore राउंड ट्रिप जो हमने निकाला, राउंड ट्रिप फॉर ए मेजर्ड जो हमने निकाला, ये इतना होगा, और एट द सेम टाइम वो भी इतना ही होगा, प्रॉपर टाइम. तो दोनों के लिए प्रॉपर टाइम सेम होगा, दोनों के कोलिजन का टाइम सेम होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी कंडीशन पे हैं. बट एट द सेम टाइम सपोज एज दिस इज मूविंग विथ v वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, so we implement the law of conservation of linear momentum. If linear momentum is conserved of any frame S, it must be follow the ma va is equal to mb vv. Then find out the in frame S. अब ये स्पीड हमको कितनी दिखाई देगी? vv. तो vv हमको vv डैश जो है vv दिखाई देने लगा. ये स्पीड चेंज हो गई, मतलब टाइम विल बी इंक्रीज, टाइम विल बी डायलेटेड. तो टाइम यहाँ अपीयर टाइम हो गया t नॉट की जगह पे. तो वी यूज द अकॉर्डिंग टू द, यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन फॉर्मूला. विद द हेल्प ऑफ टाइम डायलेशन फॉर्मूला वी कैन इजिली सॉल्व द m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. तो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो इसको हम देखेंगे. यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में वैसे बहुत कम चांस होते हैं इसके आने के, लेकिन फिर भी इसको हम एक ऐसे चैलेंज के रूप में इसको हम प्रिपेयर करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ललित कुमार गुप्ता, वर्किंग इन कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट. Once again I welcome you in my lecture series Relativity. Today we are going to discuss content mass energy relationship E is equal to mc square. Actually the mass energy relationship E is equal to mc square is the most famous and most significant relationships obtained by the Einstein in 1905 with from their special theory of relativity postulate. Now actual this so many numerous experiment have demonstrated that mass can be converted into the energy and energy convert into the mass. All this thing is possible in quantum mechanics, but that can be not possible in our classical mechanics. Okay, suppose here we have a particle of mass m and force acted upon it in this particular mass m in the direction of velocity. What happened if the force act on this particular mass of particle of mass m? What happened? The m particle mass displace a small distance dx in the direction of velocity, and the work done on this particle of mass m is stored in the form of kinetic energy. Yeah, in the other way we can say that the work done is equivalent to the gain of the kinetic energy. That means the dw is equal to dk. किया गया वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट के बराबर होता है. सो एक्चुअल द कन्वर्जन फ्रॉम मास टू एनर्जी and energy to mass is totally conversion rate is depend upon the square of the speed of light. So here the dw is equal to dk f into dx. So dk is equal to f into dx is our first equation.
But we know that according to the Newton's second law of motion, the force is the rate of change of momentum, as we already know that according to Newton law of motion, the force is the rate of change of momentum dp upon dt, where p is equal to mv. Okay, so force F is equal to d upon dt mv. And as already we know that as per the quantum mechanics, we know that mass is variate with velocity. Both are variable as per the quantum mechanics. So we can write this particular force F is equal to, first we constant m dv upon dt, then we constant v dm upon dt. This is the equation number second. So substitute the value of F from second in equation number first. So write down, substitute the value of F in equation first. So value will be dk is equal to F is equal to m dv upon dt and v dm upon dt into dx. Now we are trying to rearrange in a such a way they create a formula. So here we are multiplying dx, the m dv in a such a way dx upon dt. Like this, rearrange the content, and v dm upon dt, dm and dx upon dt. So dk is equal to m. Okay, here is the dv, here is dv, and dx upon dt means velocity v. Again v dm dx upon dt v. So equation will be m v dv plus v square dm. So this is the our third equation. Okay, so first of all what we do, we here consider a small particle mass m. When we apply the force, external force, according to this force, mass will displace from one place to the another place, which place is dx distance. Due to the displacement of dx distance, work will be done on the particle, and the work done is equivalent to the gain in the kinetic energy of the particle, which is dw is equal to dk. So the formula is our dk is equal to f into dx. So according to the Newton's second law, force is the rate of change of momentum. We already know that according to the quantum mechanics, mass variate with velocity. Both are variable in quantum mechanics, but at the same time when we consider the classical mechanism, both are not variable because both are absolute. So here we consider variable. So first we constant m, then derive pass dv upon dt, then second term v constant with respect to m. So this is the value of m. So substitute this value f in equation number first. Substitute the value here, value, and apply in a such way they create a formula. So dx upon dt is v and dx upon dt v. This is the third equation. Now according to variation of mass with velocity, formula m is equal to m naught under root 1 minus v square upon c square. This is a famous formula. Mass variation with squaring both the side, m square m naught square 1 minus v square upon c square. Okay, solve this problem, LCM लेंगे तो ये हो जाएगा m naught square c square minus v square. Okay, multiplying, diagonal multiplying m square c square minus v square m naught square c square. Okay, so m square c square m square v square is equal to m naught square c square.
differentiating in above equation, differentiating above equation. तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम उसको नहीं लेंगे, केवल इसको लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2m dm c स्क्वायर। यहाँ दोनों वेरिएबल है, तो पहले किसी एक चीज़ को हम कांस्टेंट करेंगे, दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सपोज m स्क्वायर को कांस्टेंट लिया तो हो जाएगा 2v dv, दूसरे में v स्क्वायर को कांस्टेंट लिए, पहले के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2m dm is equal to both quantity are constant. m naught is the rest mass and c is the velocity of light, also constant, so differentiation will be 0. So इसमें आप देखना, we find out the common factor is 2m, 2m, 2m and 2m. So value will be c square dm. So value will be c square dm. We write here c square dm, c square dm, 2m कॉमन निकल गया, mv dv, mv dv, v square dm is equal to 0. So equation will be c square dm is equal to mv dv, transfer the value in right hand side, plus v square dm. So this is equation number 4th. Comparing the equation number 4th and 3rd, comparing equation number 3rd and 4th, आपको दिखाई दे रहा है mv dv v square dm, mv dv v square dm. Okay, so equation will be dk is equal to c square dm. ये वैल्यू आ गई हमारी कंपेयर करने पे। अब हमको पता है कि कोई पार्टिकल जब रेस्ट पे हो और उस पर क्या कहते हैं, वर्क फोर्स किया जाए। व्हेन द पार्टिकल इन द रेस्ट पोजीशन एंड अप्लाई द फोर्स, द मास m नॉट कन्वर्ट इनटू m, m में वो रेस्ट मास कन्वर्ट हो गया m में। तो इसी प्रकार एक छोटे से वर्क डन को हम बड़े के वर्क डन के लिए कन्वर्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग होल द थिंग्स, dk इज इक्वल टू c square m naught to m dm. So equation will be dk का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, k is equal to c square m naught minus m. This is so the total kinetic energy का आपको फॉर्मूला लगा देना है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर k प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ये आपका फॉर्मूला है। तो E इज इक्वल टू k की वैल्यू आपको लिखना है m नॉट c स्क्वायर माइनस m c स्क्वायर प्लस m नॉट c स्क्वायर। ओके, वैल्यू ऑफ m नॉट c स्क्वायर, तो वैल्यू विल बी m c स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर प्लस m नॉट c स्क्वायर, द कैंसिल आउट, सो E इज इक्वल टू m c स्क्वायर. So this is the simple derivation to formulate the E is equal to mc square. With the help of this derivation we can example a nuclear fusion. We have a mass से एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूज़न और फ्यूज़न का हमारे पास एग्जांपल है, विच इज़ वेरी एक्यूरेट एग्जांपल फॉर मास एनर्जी रिलेशनशिप के लिए। इसके बाद वी विल डिस्कस द massless particle. What is the massless particle and what is the role of massless particle in our relativistic mechanics? So we will discuss in later on our video massless particle. Okay, thank you. Okay, remaining part of this relationship we will conclude here. So subtract the equation number 5th from equation number 3rd. E square minus p square c square m naught square c to the power 4 1 minus under root 1 minus c square minus m naught square c square v square upon under root 1 minus v square plus c square. When we take LCM, LCM is 1 minus v square upon c square. So m naught square c to the power 4 m naught square c square v square. To solve the problem c स्क्वायर यदि हम लेंगे तो c स्क्वायर
ऊपर चला जाएगा तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 6 एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 वी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. नाउ फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर विल बी ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4. ये कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से. ओके, तो एम नॉट सी टू द पावर 4, तो ये बचेगा सी स्क्वायर, ये हो गया वी स्क्वायर, और ये नीचे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बचा, तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो इक्वेशन विल बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर. So this is the simple relationship of E. Yeah, or also write m naught square c to the power 4 p square and c square. This relationship is also useful in our numerical problem. So we will try to solve this problem in our examination. ठीक है? So this is a very important relationship. Okay, thank you so much. Hello everyone, once again the application part of the variation of mass with velocity and massless particle. We already discussed in our last lecture what is massless particle and proved that photon is a massless particle when moved with the velocity of light. The same thing is asked in our university exam also, like that, so that a particle which travel with the speed of light must have zero rest mass. So here the question is asking to prove that the particle who is traveling velocity of light have the zero mass. So here we are trying to prove the relativistic mass of particle with speed is with the help of variation of mass formula m is equal to m naught under root 1 minus v square upon c square. So the rest mass is m naught is equal to m into 1 under root 1 minus v square upon c square. So our condition is clear. The particle who is moved with the velocity of light have the rest mass 0. So the v is equal to c, right? Put the value of v is equal to c in equation number here. This equation number suppose first. So m naught will be 0. So particle traveling with the speed of light must have 0 rest mass. So this question asked so many times in an internal examination as well as a university examination. So please concentrate. This type of question is also asked in university exam and internal exam. Similarly, when we discuss about the variation of mass with velocity m is equal to m naught under root 1 minus v square upon c square, using this formula so many type of numerical question like this particular numerical problem asked so many times. That's why I am discuss with you. A particle of mass m naught move with the speed c upon under root 2. Point to be noted here. The particle of mass m naught, rest mass, moving with the speed c. Here is c upon under root 2. Calculate its mass, momentum, total energy and kinetic energy. And here we have to calculate the momentum, total energy and kinetic energy. So we already know that the formula m is equal to m naught under root 1 minus v square upon c square. So how to guess though which formula is applicable to particular numerical problem. So just read the carefully the numerical problem and find out the m naught. So m naught is directly related to the m is equal to m naught under root 1 minus v square upon c square, where the question asking is rest mass related question. So we implement the formula m is equal to m naught under root 1 minus v square upon c square. So we use the m is equal to m naught under root 1 minus v square. Given value is velocity is given v is equal to c upon under root 2. The first question, the asking question is what is the mass? So mass is equal to m naught upon under root 1 minus v square upon c square. So write the value m naught. V value is given c upon under root 2. Here the value is v square. So v square value is c square upon 2.
तो ही इज ए सी स्क्वायर अपॉन 2, तो सी स्क्वायर वैल्यू आप रख देंगे, ऊपर चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 m नॉट. सो द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2 m नॉट इज 1.41 m नॉट. सो हियर वी कैलकुलेट द मास ऑफ द particle. Now second question is momentum. We already know that momentum P is equal to mv. So simply put the m is equal to mv. Again m is equal to, we already calculated here with mass, m is equal to 1.41 m naught. So you just write down m is equal to under root 2 m naught, and v is equal to already given c upon under root 2. So cancel out under root 2 by 2. So answer is m naught c. The third question is total energy. Total energy we already calculate in our E is equal mass energy relationship, E is equal to mc square. Again we already calculated m is equal to under root 2 m naught and c square. So we have calculated the value is same. And last is kinetic energy. Kinetic energy is equal to total energy minus rest mass energy. This is the important formula for so many questions. So be concentrate and be careful and learn the kinetic energy formula. Kinetic energy is equal to total energy minus rest mass energy. We already calculate the total energy m naught under root 2 c square, put the value, and minus m naught c square. So kinetic energy will be 0.41 m naught c square. So this type of question asking in university examination and internal examination. Also in a university examination and internal examination asking the theoretical question like this: derive an expression for the mass variation with velocity in relativistic range. Point to be noted. Here the question will be twist in a word, use the relativistic range, and the second question will be asking a non-relativistic range. In general we are discussing about the relativistics, so don't worry. Question is totally under the relativistic case. Second question, deduce the Einstein mass in energy relationship, which are already discussed in last video, and give evidence showing its validity. So prove the validity on behalf of nuclear fusion and fission. Okay. The next thing is a question may be asked, what are the massless particle? Okay. What are massless particle? And so that the massless particle can exist only if they move with the velocity of light. So that particular question is already we discussed in our last video, ki how to calculate the massless particle and which is the massless particle, photon is the massless particle, we already discussed. So this type question will ask in internal examination as well as university examination. So prepare another question from your book bank. So you can practice so many other questions related to the massless particle and variation of mass with particle and this type of theory question. So in our next video we will discuss the another type of question related to this type of practice. Okay, thank you so much. क्लासिकल मैकेनिक्स में एक बॉडी के मोमेंटम को एसोसिएट किया जाता है उसके मास और उसके वेलोसिटी के साथ. क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि अगर एक बॉडी का मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो होगा उसका मास इनटू उसका वेलोसिटी. अगर स्केलर फॉर्म में कहें तो हम कहेंगे मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर है उस बॉडी का मास इनटू उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के. लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स ये रियलिटी को पूरी तरह से डिपिक्ट नहीं कर पाता है. ये रियलिटी का एक बहुत छोटा सा भाग हमें दिखा पाता है. इस क्लासिकल मैकेनिक्स को अपने जीवन काल में दो बहुत बड़े झटके लगे और उन दोनों झटकों से इसका जो साख है ये बिल्कुल हिल गया. और वो दो इंसिडेंट्स हैं, पहला थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का जन्म और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म. आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जहां पर यूज किया गया स्पेशल रिलेटिविटी को और जो आगे चल के क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म देने वाला है. यह उस समय की बात है जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ये एक्सप्लेन कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. क्लासिकल मैकेनिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का
अब तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को यह मानना पड़ा कि लाइट जो है ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और ये एग्जिस्ट करता है एनर्जी के पैकेट के तौर पे, और उस एनर्जी पैकेट को नाम दिया गया फोटॉन, जिसका कि एनर्जी होता है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू उस फोटॉन का फ्रीक्वेंसी। पर अगर फोटॉन ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता हो तो जैसे कि हमें पता है हर मूविंग पार्टिकल का एक मोमेंटम होता है, तो इस फोटॉन का मोमेंटम कितना होगा। चलिए देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स हमें क्या बताएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स के नजरिए से अगर हम देखें तो एक फोटॉन, चूंकि ये लाइट है तो ये एक मासलेस चीज है, इसका कोई मास नहीं है। तो जब इसका कोई मास नहीं है और क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहता है कि एक बॉडी का मोमेंटम जो है ये होता है उसका मास इनटू उसका वेलोसिटी, तो फोटॉन का वेलोसिटी कुछ भी हो, चूंकि इसका मास जीरो है तो इसका मोमेंटम भी जीरो होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स उन सारे पार्टिकल्स के साथ डील कर पाता है जिनका की स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में नहीं है। अब एक फोटॉन जिसका की स्पीड होगा लाइट के ही स्पीड के बराबर, तो यहां फोटॉन के पार्टिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स बिल्कुल फेल हो जाएगा। इसका अगर वेव नेचर की बात करें लाइट की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये पूरी तरह से सक्सेसफुल है, लेकिन इसके पार्टिकल बिहेवियर को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो यहां हमें क्या करना होगा, अगर एक फोटॉन के मोमेंटम वो होता भी है या नहीं होता है, अगर होता है तो कितना होता है, ये अगर हमें पता लगाना है तो हमें रुख करना पड़ेगा फिजिक्स के उस स्ट्रीम के तरफ जो कि डील करता है उन सारे पार्टिकल्स के साथ जिनका स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरेबल हो, और वो स्ट्रीम है स्पेशल रिलेटिविटी। तो चलिए देखते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी एक फोटॉन के मोमेंटम के बारे में हमें क्या बता पाएगा। स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से सब कुछ रिलेटिव होता है। एक बॉडी का मास, उसका एनर्जी, उसका लेंथ, उसके लिए जो टाइम है, ये सारी चीजें रिलेटिव होता है। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी उसके लिए मेजर करेगा। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड बॉडी के बीच के रिलेटिव स्पीड पे। तो चलिए मान लेते हैं ये एक ऑब्जर्वर है, मान ले ये आप हैं, और ये है एक स्पेसशिप। पहला सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये स्पेसशिप जो है ये आपके रेस्पेक्ट में रुका हुआ है। इसका मतलब आप दोनों के बीच का जो रिलेटिव स्पीड है वो जीरो है। आप इस बॉडी का मास मेजर कर रहे हैं, आपने पाया इसका जो मास है स्पेसशिप का ये है m0। चूंकि स्पेसशिप आपके रेस्पेक्ट में रुका हुआ है और आप इसके मास को मेजर कर रहे हैं, तो अब जो मास इसका आपने मेजर किया उसे इसका रेस्ट मास कहा जाएगा। अब सिचुएशन थोड़ा बदल जाता है। केस कुछ ऐसा है कि ये अब आपके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में है और इसका जो स्पीड है ये स्पीड आपने मेजर किया, ये स्पीड v है, मतलब कि आपके रेस्पेक्ट में इसका स्पीड v है। अब इसका मास m0 नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। आप जो अब इसका मास मेजर कर रहे हैं इस मूविंग बॉडी का, वो मास है m। तो ये m जो है ये बराबर होता है कुछ इस टर्म के, इस एक्सप्रेशन के, m0 दैट मीन रेस्ट मास डिवाइडेड बाय √1 - v² डिवाइडेड बाय c²। यहां पर c लाइट का स्पीड होता है। साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं, ये जो m है इसे रिलेटिविस्टिक मास कहा जाएगा इस बॉडी का आपके रेस्पेक्ट में। अब यहां पर हम और दो फेमस इक्वेशंस यूज करने वाले हैं। पहला जो कि है एक बॉडी का जो एनर्जी होता है उसके मास के कारण उसमें जितना एनर्जी कंटेंट होता है जो कि बराबर होता है mc² के। यह बहुत ही फेमस इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन जो हम यूज करने वाले हैं वो ये कि एक बॉडी का मोमेंटम जो है वो बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी के। ये क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहता है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस में m के जगह हम अगर ये वाला एक्सप्रेशन इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा।
पहला जो इक्वेशन है, जो एनर्जी का इक्वेशन है, उसके लिए हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। m के जगह वो जो एक्सप्रेशन है m नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। और वही काम जब हम दूसरे इक्वेशन में करेंगे तो जो हमें इक्वेशन मिलने वाला है वो इक्वेशन कुछ ऐसा होने वाला है। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं, इनमें हम सिंपल अलजेब्रा यूज करेंगे और एनर्जी, मोमेंटम, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी और लाइट का जो स्पीड है c, इनके बीच का एक इक्वेशन हम बनाएंगे और वहां से हम आगे चल के डेराइव करेंगे जो फोटोन का मोमेंटम होगा वो कितना होगा। तो यहां से जो v है, इस v को हमें एलिमिनेट करना है। तो ये रहे ये दो इक्वेशंस, यहां से हमें v को एलिमिनेट करना है। हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन से v स्क्वायर्ड का वैल्यू पता करेंगे और वही एक्सप्रेशन दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां से अगर पहले वाले इक्वेशन को, एनर्जी वाले इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा। इससे आगे बढ़ते हैं, डिनोमिनेटर को अगर इवैल्यूएट करते हैं तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा। अब जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो सी स्क्वायर्ड है उसे हम न्यूमरेटर में भेज सकते हैं, तो वो चला गया न्यूमरेटर में। तो सी का जो पावर है न्यूमरेटर का, जो कि 4th पावर था, अब वो 6th पावर हो गया। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को अगर हम ई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसा बना। अब ई स्क्वायर वी स्क्वायर के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन बना। सो यहां से आगे बढ़ते हुए हमें वी स्क्वायर के लिए जो इक्वेशन है, कुछ इक्वेशन ऐसा मिल गया। अब यहां पर इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। v के लिए हम वैल्यू इस वाले इक्वेशन में p इज इक्वल टू एम नॉट वी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर वहां पर पुट नहीं करेंगे, बल्कि यहां से मोमेंटम वाले इक्वेशन से v स्क्वायर्ड के लिए एक एक्सप्रेशन पता लगा लेंगे, या फिर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनाएंगे जहां पर v स्क्वायर्ड अपीयर करेगा और वहां पर हम इस इक्वेशन 1 वाले v स्क्वायर्ड का जो वैल्यू है उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहां भी वही करते हैं, दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसा बन जाएगा। अब सेम वही काम करते हैं, डिनोमिनेटर को इवैल्यूएट करते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसा बना। अब फिर से डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो सी स्क्वायर्ड है उसे न्यूमरेटर में भेज देते हैं तो सी स्क्वायर्ड चला गया न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर वाले, राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर वाले सी स्क्वायर्ड माइनस वी स्क्वायर्ड को पी स्क्वायर्ड के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो सिचुएशन कुछ ऐसा बन गया। अब यहां से अगर हम वी स्क्वायर्ड वाले टर्म्स को एक साथ रखते हैं तो कुछ इक्वेशन ऐसा बना और हम अब आगे वी स्क्वायर्ड को कॉमन आउट करते हुए कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बना सकते हैं। इसे चलिए इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 से वी स्क्वायर्ड का वैल्यू जो है इक्वेशन 2 के वी स्क्वायर्ड के जगह पे पुट करना है। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम और इक्वेशन 2 जो है इसे फिर से लिख लेते हैं। अब ये वाला जो वैल्यू है इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहां पर। आगे बढ़ते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा। अब हम डिनोमिनेटर वाले ई स्क्वायर्ड को अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर कह सकते हैं इक्वेशन के दोनों साइड में हमने ई स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई कर दिया तो सिचुएशन ऐसा बना। अब जो लेफ्ट हैंड साइड के दो एक्सप्रेशंस है उन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए इक्वेशन के दोनों तरफ ई स्क्वायर्ड पी स्क्वायर्ड सी स्क्वायर्ड है, उन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो गया कैंसिल। तो एक्सप्रेशन अब कुछ ऐसा बना, ये बन गया इक्वेशन। अब यहां इक्वेशन के दोनों साइड को हम डिवाइड कर देंगे c टू द पावर 4 इंटू एम नॉट स्क्वायर्ड से, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो इक्वेशन बना वो इक्वेशन कुछ ऐसा बना। तो हमने एक पार्टिकल का एनर्जी, उसका रेस्ट मास और उसके मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन हमने बना लिया। तो ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को यहां फिर से लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखिए ये वाला है इक्वेशन। अब देखते हैं फोटोन के लिए मोमेंटम क्या बनेगा। एक फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो रेस्ट मास 0 होता है। तो अगर फोटोन का रेस्ट मास 0 होगा और इसी इक्वेशन को हम अगर यूज करें तो एम नॉट के जगह हम पुट करेंगे 0। दैट मीन इक्वेशन बन जाएगा कुछ ऐसा। तो स्क्वायर रूट अगर कंसीडर करते हैं दोनों साइड का तो हमें मिलेगा E इज इक्वल टू पी सी। दैट मीन एक फोटोन का एनर्जी इज इक्वल टू उसका मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट। यहां से आगे बढ़ते हैं तो हम कहेंगे मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट।
अब जैसे कि हमें पता है एक फोटॉन का एनर्जी जो है ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू उस फोटॉन का फ्रीक्वेंसी, यहां पर h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और लाइट का स्पीड जो है ये बराबर होता है, ऑब्वियसली ये फोटॉन के स्पीड के बराबर है। लाइट का स्पीड हो जाएगा फोटॉन का जो फ्रीक्वेंसी है और फोटॉन का जो वेवलेंथ है उन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों वैल्यूज को रिक्वायर्ड जगह पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा P इज इक्वल टू ई के जगह h न्यू डिवाइडेड बाई c के जगह लैम्डा न्यू। तो न्यू कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचा हुआ रहेगा मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ दैट फोटॉन। तो ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि हमें बताता है कि एक फोटॉन का मोमेंटम कितना होगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर क्वांटम मैकेनिक्स के सारे वीडियोस आपको देखने हैं तो प्रॉपर प्लेलिस्ट को विजिट करें, जिसका कि लिंक मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस में हम क्वांटम मैकेनिक्स के आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।